Hello dear learners. Today we are going to discuss about the second process of central dogma of protein synthesis or central dogma of biology or the central dogma of life, that is transcription. In the online lecture series of Google Meet, we discuss about the first initial step of central dogma, that is your DNA replication. Now today we are going to discuss about the second process of central dogma, that is your transcription. So what do you mean by the central dogma of biology? It is very simple. There are the three steps that are included in central dogma of biology, that are DNA replication, transcription and translation. So what is the main purpose of this process? It is very simple. If you have to synthesize the particular protein or the particular molecule which is required for your body, so for that purpose, the first step is there is a process of replication, that is the DNA replication. The DNA is the genetic information coder, or the also DNA is also known as, it is a segment of it is also a gene. What do you mean by gene? It is a segment of DNA, or it is a fragment of DNA that particularly inherit the character and expresses the character. So for this purpose, DNA replication, or the DNA that codes the information, it is transmitted for the protein synthesis through transcription process, or DNA it's converted into RNA, mainly mRNA, and after that it will be lead to the next process, that is protein synthesis. The information coded by the RNA, it will be converted in the language of amino acid or in the language of proteins. So we will start about the transcription process in details. So definition is that the cellular process in which RNA is synthesized by using DNA as a template is known as transcription. It is the cellular process, that is, it will be carried out in the cell, in which the main purpose is the synthesis of RNA by using template, that is the strand which is required to transfer the information in the form of RNA, and after that in the form of protein. So cellular process in which RNA is synthesized by using DNA as a template, that is the template means what, आपको एक पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन मिलेगा, उसको कॉपी करना है और वो ट्रांसफ़र करना है आगे, तो वो टेम्पलेट रहेगा, वो डीएनए का रहेगा, और इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द आरएनए. सो दिस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. So there are three major types of RNAs. First is mRNA, second is tRNA, third is rRNA, and many additional specialized RNAs are also there, which has the catalytic activity, also the regulatory functions or regulatory activity that are present in the cell. So what do you mean by mRNA? mRNA is nothing but the messenger RNA. The total percentage of mRNA is 5 to 10% that transfers the information of gene to the ribosome. Why this is so? अगर आपको प्रोटीन सिंथेसाइज करना है, तो प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए आपकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है सेल की, वो सेल की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास कुछ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं फ्री स्टेट में या बाउंड स्टेट में. जो फ्री स्टेट में होते हैं वो सिक्रेटरी प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, और वही राइबोसोम तक इंफॉर्मेशन लेके जाना किसका काम है? mRNA का. ठीक है, मैसेंजर आरएनए का, दैट इनकोड्स द अमीनो एसिड सीक्वेंस. प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स आर द मॉलिक्यूल्स, they are made up of by long polypeptide chains of amino acid. अपने पास 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स है, ठीक है.
इससे पहले 20 थे, अभी 2 ऐड हुए हैं, 22 अमीनो एसिड्स हैं। उस अमीनो एसिड की एक लॉन्ग चेन होती है, पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे अपन उसको, और उस पॉलीपेप्टाइड से एक पर्टिकुलरली आपका प्रोटीन सिंथेसाइज होगा। और वो प्रोटीन सिंथेसाइज होने के लिए जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो पहले डीएनए से एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाएगी, मैसेंजर आरएनए उसको कन्वर्ट कर देगा और वो सिग्नल कर देगा राइबोसोम को कि इस प्रकार के प्रोटीन्स आपको सिंथेसाइज करने हैं, जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने कोड किया है। ठीक है, उसके बाद आता है टीआरएनए। टीआरएनए का काम होता है जो एमआरएनए इन्फॉर्मेशन लेके आए, ठीक है, दैट अमीनो एसिड पर्टिकुलरली जो टीआरएनए कोड करेगा, वो टीआरएनए का काम होता है, वो रीड करता है। रीड करना मीन्स व्हाट, आगे जाके अपन जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे तो टीआरएनए का सबसे बड़ा रोल वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आरआरएनए। आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए दैट कंस्टिट्यूट्स ऑफ राइबोसोम एंड 60 to 80% वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, these are the particular structure of transcription process: DNA, DNA2 conversion of rRNA, mRNA, tRNA, miRNA, ribozyme and U1 RNA. These are the different types of RNA, like some of the coding rRNA, non-coding rRNA. ठीक है, in replication entire DNA molecule is normally copied. अभी आप लोगों ने DNA replication पढ़ा है, उसका रिवीजन भी हमने किया है। तो डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, आपको पता है कि दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स जो भी होते हैं वो एंटायरली कॉपी होते हैं, और आपको ये भी पता है कि डीएनए का जो मोड ऑफ रेप्लिकेशन है दैट इज योर सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, सो इन विच कंप्लीटली डीएनए जो टेम्पलेट रहेगा वो पूरा का पूरा कॉपी हो जाएगा। लेकिन इन ट्रांसक्रिप्शन देयर इज अ पर्टिकुलर जीन, अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ जीन्स और द स्पेसिफिक सीक्वेंस, ये कॉपी होता है एट अ टाइम, एंड सम पोर्शंस ऑफ डीएनए आर नेवर ट्रांसक्राइब्ड। जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो भी स्पेसिफिक जीन है जिसके पास इंफॉर्मेशन है, सपोज यू हैव टू सिंथेसाइज द XYZ प्रोटीन, और वो XYZ प्रोटीन्स की कैपेसिटी वो जिन सीक्वेंस में प्रेजेंट है वही सीक्वेंस सिर्फ ट्रांसक्राइब होगा, मतलब वही सीक्वेंस कॉपी हो जाएगा। ठीक है, जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर द टाइप ऑफ प्रोटीन एंड फॉर आरएनए may present on any strand of DNA. ठीक है, so there is a difference between replication and transcription. So what are they? In replication टेम्पलेट जो होता है आपको पता है दोनों स्टैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट, बोथ स्टैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट, बट इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली सिंगल स्टैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट और स्मॉल पोर्शन ऑफ जीनोम एक्ट एज अ टेम्पलेट। रेप्लिकेशन के लिए आपको प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है। आपने प्राइमेज नाम का जो एंजाइम है हम लोगों ने जब पढ़ा था कि जो रॉ मटेरियल लगते हैं फॉर द इनिशिएशन प्रोसेस दैट आर प्राइमेज, सो प्राइमर इज रिक्वायर्ड फॉर लाइक आरएनए प्राइमर, सम ऑफ द सीक्वेंस ऑफ 5 to 10 न्यूक्लियोटाइड्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के लिए देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्राइमर। फॉर द रेप्लिकेशन प्रोसेस द एंजाइम वी यूज is DNA polymerase. For the transcription process, the enzyme we use is RNA polymerase. So this is the very major difference in DNA replication and transcription. प्रोडक्ट जो रहेगा डीएनए रेप्लिकेशन में ऑब्वियसली जो भी स्ट्रैंड आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए था तो जो भी रेप्लिकेट होगा वो भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल रहेगा। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए जो रहेगा वो डबल स्टैंडर्ड रहेगा और वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए से आपको एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ट्रांसक्रिप्ट जो एक मिलेगा वो रहेगा एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ट्रांसक्रिप्ट। रेप्लिकेशन में आपको 4 बेसेस रिक्वायर्ड थे, एडेनिन, guanine, thymine, cytosine. Adenine pairs with the thymine with double hydrogen bond and guanine pairs with cytosine with triple hydrogen bond. But in transcription, there is a replacement of one base. Instead of thymine, there is a presence of uracil. Okay. प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी आपको सबको पता है, जब अपने मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म भी पढ़ा और डीएनए पॉलीमरेज जब हमने डिटेल्स में पढ़ा था वहाँ पे प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी प्रेजेंट थी, जैसे एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी थी और प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी थी।
डीएनए पॉलीमरेज के पास प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी होती है। मतलब वो क्या करता है, जैसे जैसे रेप्लिकेशन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे वो क्रॉस चेक करते रहता है कि अगर वहाँ पे कुछ मिसमैच रिपेयर या कुछ मिस बेस इनकॉर्पोरेशन हुआ है तो वो बेस को एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी की वजह से वो निकाल देगा और वहाँ पे एक प्रॉपरली करेक्ट हमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस वहाँ पे ऐड कर देगा और डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प की वजह से वहाँ पे बेसेस ऐड हो जाएंगे और लाइगेज उसे गैप वो रिसील कर देगा। तो वहाँ पे प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी होती है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी नहीं होती। ओके, अभी बात देखते हैं कि फीचर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। फीचर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, it is very highly selective process. Why this is so? This is selective is due to signals embedded in the nucleotide sequence of DNA. There are some signal sequences that directs the process of transcription. Specific sequences mark the beginning and end of the DNA segment which is to be transcribed. अभी ट्रांसक्रिप्शन में जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में हमने पढ़ा था, वहाँ पे इनिशिएशन होता है, इलोंगेशन होता है और टर्मिनेशन होता है। इनिशिएशन के लिए भी अपने पास कुछ सीक्वेंस था जो ओराइसी, ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। वैसे ही ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए कुछ सिग्नल सीक्वेंस लगता है, जैसे स्पेसिफिक सीक्वेंस लगेगा जहाँ से पर्टिकुलरली आपका एक मॉलिक्यूल का ट्रांसक्रिप्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ से उसे बोलेंगे अपन इनिशिएटर सीक्वेंस। और जहाँ पे वो ट्रांसक्रिप्शन रोकना पड़ेगा, एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन दैट इज द टर्मिनेशन, वो जो सीक्वेंस रहेगा वो टर्मिनेशन सीक्वेंस रहेगा। तो वो सब प्रोसेस जो है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस या स्पेसिफिक सीक्वेंशियल स्टेप्स में होता है। दिस सिग्नल इंस्ट्रक्ट द एंजाइम दैट यू नो देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एंजाइम, where to stop and stop the transcription, when to start, how often to start. This all process is carried out or regulated by the enzymes. Second feature, many of the RNA transcripts are synthesized as a precursor that is known as primary transcript. सबसे पहले जो RNA बनने वाला है वो primary transcript रहेगा. After that there is a modification, trimming, converted into there is a modification and trimming and after that it will be converted into functional RNA. मतलब सबसे पहले जो आपका RNA बनने वाला है, सिंथेसाइज होने वाला है, वो रहेगा आपका प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। लेकिन उसको एक फंक्शनल RNA बनाने के लिए कुछ प्रोसेस लगेंगे, जैसे मॉडिफिकेशन हो गया, वो मॉडिफिकेशन उसको एक फंक्शनल RNA में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए कुछ एरिया, कुछ प्लेसेस आर रिक्वायर्ड। सो व्हाट आर दे? लाइक ट्रांसक्रिप्शन जो अगर प्रोकैरियोट्स में होता है तो वो साइटोप्लाज्म में होगा। मतलब जितने भी आरएनए बनने वाले, RNA1 मतलब tRNA, mRNA, rRNA, ये सब जो बनने वाले वो साइटोप्लाज्म में बनने वाले। क्यों ऐसा? बिकॉज प्रोकैरियोटिक के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। सो जो भी प्रोसेस होने वाला है वो साइटोप्लाज्म में होने वाला है। लेकिन यूकैरियोटिक के पास ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है एंड माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। न्यूक्लियस में भी न्यूक्लियोलस में rRNA सिंथेसाइज होता है एंड न्यूक्लियोप्लाज्म में tRNA एंड mRNA सिंथेसाइज होता है। सो दिस इज द पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर एरिया where this process of transcription is carried out in prokaryote as well as eukaryote. The basic biochemistry of RNA synthesis is similar to prokaryotes and eukaryote, but regulation is more complex. अभी जो भी प्रोसेस है प्रोकैरियोट्स में एंड यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की, इट्स समवॉट सिमिलर, बट रेगुलेशन मीन्स वेयर टू स्टॉप, व्हेन टू स्टार्ट, and the different factors, initiation factor, elongation factor, termination factor, these particular factors are different in both of the process. RNA synthesis in prokaryotes is catalyzed by a large enzyme called as DNA dependent RNA polymerase or simply RNA polymerase. अभी DNA dependent क्यों बोला है? क्योंकि जो अपन टेम्पलेट यूज करने वाले वो DNA का रहेगा, और डीएनए डिपेंडेंट मतलब वो आरएनए पॉलीमरेज जो भी काम करने वाला है इट विल बी डिपेंडेंट ऑन द डीएनए, सो इट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में एक मेजर डिफरेंस है कि ऑल ऑफ द आरएनए, जो भी 3 आरएनए बनने वाले हैं, आरआरएनए, एमआरएनए, एसआरएनए,
RRNA, mRNA एंड tRNA, ये तीनों RNA बनाने के लिए एक अपने को सिंगल RNA पॉलीमरेज लगता है इन प्रोकैरियोट्स, लेकिन इन यूकैरियोट्स आपको 3 डिफरेंट RNA पॉलीमरेज लगते हैं, ठीक है। RNA polymerase use one of the DNA strand as a template on which complementary ribonucleotides are incorporated to synthesize rRNA. DNA सिंथेसिस के लिए अपने को डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स लग रहे थे, ठीक है, DNTPs, लेकिन RNA सिंथेसिस के लिए अपने को लगेंगे राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ओके, so this is the strand of DNA in which transcribed to RNA is called as template strand. You can see here opposite strand is referred as coding strand and template strand जो रहेगा आपका that is nonsense strand और antisense strand and this is template strand. So till then this is the basic biochemistry of RNA polymerases or the initiation process or the basic concept of transcription. In the next lecture we are going to discuss about we are going to discuss about in details the RNA polymerase and the process of transcription. If you have any questions, you can ask in the comment section or in our WhatsApp group. Till then, study for this lecture and revise for the basic concept of transcription. Thank you.